کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم 4 دوستوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کا نام کیلب تھا اور یہ سب بہت اونچے پہاڑ سے کود جاتے ہیں کیونکہ یہ چاروں دراصل طاقتور جادوگر خاندان کے مختلف بچے تھے، یعنی کہ جادوگر خاندان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ ان کی نسل سے تھے، اس لیے ان چاروں کے پاس بھی جادو کی طاقتیں موجود تھی۔ ان کے اسکول کے کچھ بچے پہاڑ کے نیچے پارٹی کر رہے تھے اور یہ چاروں بھی یہاں پر آتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک دوست سب کو سارا نامی لڑکی سے ملاتی ہے جسے کیلب پہلی نظر میں پسند کرتا ہے۔ اب ایک لڑکا اور اس کے کچھ دوست یہاں پر آ کر ان سے کسی بات پر لڑنے لگتے ہیں اور وہ سارا کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کیلب کا دوست اپنی جادوگر طاقت استعمال کرتا ہے جس سے دوسرا لڑکا ایک لڑکی پر الٹی کر دیتا ہے جو اس سے جگڑ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر سارا اور کیلب دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک لڑکا آتا ہے جو ان سے ملتا ہے جس کا نام چیز تھا اور اس نے حال ہی میں اسکول میں داخلہ لیا تھا، لیکن پھر ان دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس یہاں آ رہی ہے تو یہ سب ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیلب اور اس کے 4 دوست ایک الگ گاڑی میں تھے جبکہ سارا اور اس کے دوست ایک مختلف گاڑی میں تھے، لیکن یہاں سارا کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ کیلب سے مدد مانگتی ہے، لیکن ان کے ایک دوست جو سب سے زیادہ غصے والا تھا اور بار بار اپنی طاقت استعمال کرتا تھا وہ یہاں بھی ایسا ہی کرتا ہے جس کی مدد سے وہ سارا کی گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی دوران پولیس ان 4 دوستوں کی گاڑی دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی گاڑیاں تیزی سے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی کو وادی میں گرا دیتے ہیں جس سے پولیس ہوش میں آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ پولیس کے پیچھے اپنی گاڑی واپس نہ لے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس کے سامنے ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی یہ اپنی طاقتوں سے سیکھا۔ اب سارا اور اس کے دوست ہاسٹل میں آتے ہیں جبکہ باقی سب اور کیلب اپنے گھر آتے ہیں۔ کیلب کی ماں اپنے بیٹے کیلب کو لے کر بہت پریشان تھے کیونکہ تمام جادوگر اور ان کے بچے 13 سال کی عمر میں اپنی طاقتیں حاصل کرتے ہیں، پھر 18 سال کی عمر میں وہ عروج کو پہنچتے ہیں، یعنی ان کی طاقتیں مزید بڑھ جاتی ہیں جس سے ان کی طاقتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے جیسے جادوگر اپنی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں وہ بہت برے لگنے لگتے ہیں، اسی وجہ سے کیلب کی ماں اس کے بارے میں فکر مند تھی کیونکہ جب کیلب کے والد کی طاقتیں بڑی تھی تو انہوں نے اپنی طاقتیں بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دی جس سے وہ بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ اس لیے کیلب کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کہتی ہوں کہ اپنی طاقتوں کا استعمال نہ کرو کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی، کم از کم وہ صرف اسے تب ہی استعمال کر سکتا ہے جب اسے ضرورت ہو۔ وہاں سارا اور اس کے دوست کیلب اور اس کے دوستوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کی دوست سارا کو بتاتی ہے کہ وہ 5 آخری جادوگر خاندانوں کی نسل سے ہے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ 5ویں کہاں ہے کیونکہ وہ چوتھے کی دوست بن چکی تھی۔ پھر اس کی دوست اسے بتاتی ہے کہ 5ویں نسل مر چکی تھی۔ جنگل میں جہاں سب پارٹی کر رہے تھے پولیس کو ایک لڑکی کی لاش ملتی ہے۔ جب سارا ہاسٹل میں نہا رہی تھی تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے، وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ چیک کرنے کے لیے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک ٹوٹا ہوا لیمپ تھا۔ جب وہ چیک کر رہی تھی تو اسے اپنے پیچھے ایک شخص کا سایہ نظر آتا ہے جو اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا جسے سارا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو کیلب کا دوست وہاں پر آ جاتا ہے۔ سارا اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اور وہ دونوں واش روم کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اب بچے کی موت کی خبر اخبار میں بھی شائع ہو جاتی ہے۔ جب کیلب گاڑی سے نکل رہا تھا تو وہ فون پر اپنے دوست سے اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا شک اپنے دوست پر جاتا ہے جو سب سے زیادہ غصے میں رہتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ اپنی طاقتیں سب سے زیادہ استعمال کرتا تھا، وہ کیلب کے ساتھ بھی تھا کیونکہ کیلب کو سب سے پہلے طاقتیں بڑھانے کا کام تھا۔ وہ اس وقت باتیں کر رہے تھے کہ اسی وقت اس بچے کا بھوت آ کر کیلب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے جو اچانک ڈرون میں بدل جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے۔ اس سے کیلب کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے اور اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے۔ ایک بہت برا حادثہ ہوتا ہے جس میں گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیلب خود بھی ٹوٹ گیا لیکن پھر وہ اپنی طاقتوں سے اپنی گاڑی کو اور خود کو دوبارہ سے جوڑ لیتا ہے۔ وہ یہ بات اپنے دوست کو بھی بتاتا ہے تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کون اس کے پاس بھیجے گا۔ اب جب کیلب دوا خرید رہا تھا تو سارا کی دوست وہاں پر آتی ہے اور اسے پارٹی میں آنے کے لیے کہتی ہے، لیکن نئی لڑکی خوش ہوتی ہے، لیکن کیلب کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ اہم کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ پھر سارا اسے کہتی ہے کہ آؤ میں تمہارے کام میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس پر کیلب بھی مان جاتا ہے اور سارا کے ساتھ ایک پرانے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہ سارا کو گاڑی میں بٹھا کر اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پادری رہ رہا تھا۔ کیلب پادری کو دبا دیتا ہے اور یہاں ہم کرسی پر ایک آدمی کے ہاتھ کو بھی دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ برا آدمی کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ جب کیلب واپس آتا ہے تو وہ اس کلب میں چلے جاتے ہیں جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ یہاں اس کے دوست بھی انجوائے کر رہے تھے۔ پھر سارا اور کیلب ڈانس کرنے لگتے ہیں لیکن اس کا ایک غسیلا دوست لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں کیلب کے دوست نے اپنی طاقتوں کی مدد سے شرط جیت لی تھی اور وہ گروپ اسے پیسے دینے سے انکار کر رہا تھا۔ یہاں کیلب آ کر ان کی
लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका दोस्त इस पर अपनी ताकतों से हमला करता है। इससे कैलिब भी गुस्से में आ जाता है और चूंकि इसके पास सबसे ज्यादा ताकत मौजूद थी तो वो अपनी ताकतों से अपने दोस्त पर हमला करता है और वो कहता है कि हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब कैलिब को यकीन हो गया था कि इस लड़के को इसके जिद्दी दोस्त ने मारा है। जब कैलिब सारा को घर छोड़ने के लिए जाता है तो वो दोनों रास्ते में बहुत जज्बाती बातें करने लगते हैं, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारा ने रात को एक अजीब ख्वाब देखा जिसमें कुछ मक्खियां इसके पैरों पर आई और इससे चिमट गई। फिर जैसे ही देखा वहाँ इतनी ज्यादा मक्खियां आ गई और उन्होंने सारा को चारों तरफ से घेर लिया। इसने देखा कि ये मक्खियां मेरे दोस्त के अंदर से निकल रही हैं, और इसका गसीला दोस्त भी अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि दोस्त कैलिब को समझाओ कि मैंने इस लड़के को नहीं मारा बल्कि मैंने भी इसका भूत देखा है। अगले दिन जब कैलिब स्कूल आया तो प्रिंसिपल से बहुत नाराज था क्योंकि इसे भी पता चल गया था कि गुज़श्ता रात इनकी क्लब में लड़ाई हुई थी। अगले दिन सारा स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो मक्खियों से मुतालिक जादू के मुतालिक जानने लगती है। किताब में वही तस्वीर वो दोबारा से देखती है जो इसने उस रात ख्वाब में देखी थी। इसे इस सब से समझ आती है कि मेरे साथ जरूर कुछ हो रहा है। स्कूल में एक लड़का आकर बदतमीजी शुरू कर देता है। इसने चेस को पकड़ लिया लेकिन चेस इसे आसानी से पकड़कर इसे टिक कर देता है। फिर वो नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाता है। कैलिब भी इस चीज को देख रहा था जिससे इसे हैरानी होती है। इसी रात जब कैलिब सोने की कोशिश कर रहा था तो इस लड़की का भूत फिर से इसे आकर डराता है। फिर अगले दिन वो दोबारा चेस से मिलता है। वो दोनों स्कूल के स्विमिंग पूल में आते हैं और यहाँ पर तैरने का मुकाबला करते हैं। कैलिब जीतने ही वाला था लेकिन ठीक वक्त पर चेस कुछ ऐसा करता है जिससे इसकी आंखों का रंग बदल जाता है। ऐसा होते ही कैलिब पूल के नीचे किसी चीज से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह से वो हार जाता है, जिसे देखकर चेस जीत जाता है। जब कैलिब को होश आया तो वो अपने समझाने की कोशिश करता है कि चेस ने मुझे जादू के साथ हराया क्योंकि मैंने इसकी आंखों का रंग बदलते हुए देखा है। लेकिन इसके दोस्त कैलिब की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो समझते थे कि चेस के पास कोई ताकत नहीं है और वो कैलिब से कहते हैं कि छोड़ दो। अगले दिन क्लास के बाद प्रिंसिपल चेस को अपने दफ्तर बुलाता है और इस बच्चे की मौत के बारे में इससे पूछता है। प्रिंसिपल का शक चेस पर था क्योंकि पुलिस को इस बच्चे की गाड़ी के पीछे चेस का शनाख्ती कार्ड मिला था। इधर कैलिब और इसका दोस्त भी इस बच्चे के भूत के बारे में जानने का फैसला करते हैं। जिस तरह उन्होंने चेस को बर्ताव करते हुए देखा था इनका शक भी चेस पर था। दोनों दोस्त खामोशी से स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, चेस की तफसीलात देखने लगते हैं। सारा को पता चलता है कि इस दोस्त अचानक इतनी बीमार है कि इसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा तो सारा अपने दोस्त को देखने अस्पताल जाती है जहाँ डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त को इन्फेक्शन हो गया है। ये देखकर लगता है कि इसे बहुत सारी मक्खियों ने काटा है। ये सुनकर सारा को अपनी मक्खियों वाला ख्वाब याद आता है। वहाँ कैलिब को जिसके बारे में तलाश करते हुए पता चलता है कि इसकी माँ छोटी उम्र में मर गई और जिस औरत ने इसे गोद लिया था वो भी इस वक्त मर गई जब चिस 18 साल का था। ये पढ़कर कैलिब और इसके दोस्त को शक होता है कि चिस भी हमारी तरह जादूगर है और इसे बचपन में सिखाई गई इस जादू की किताब की याद आती है। इसलिए सारे दोस्त मिलकर कन्वेंट जाते हैं। सबसे पहले वो भूत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं जिसके बाद वो जादू की किताब पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि हाँ चिस भी जादूगर है और ये 5वीं जादूगर खानदान का खून है जिसे वो मुर्दा समझते थे। ये जानकर कैलिब अपने गसीले दोस्त से पूछता है अच्छा अब सच सच बताओ कि तुमने इस लड़की को मारा था। इस पर कैलिब का दोस्त कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे नहीं मारा बल्कि मैंने भी इसका भूत देखा है। वो मेरे पास आई और मुझे परेशान किया। ये सुनकर वो दोस्त मान जाते हैं। इसका मतलब है कि चिस इस सब के पीछे है और अब तक इनके साथ जो भी हो रहा था ये सब चेस का मंसूबा था। सारा अपने दोस्त की हालत के बारे में कैलिब और इसके दोस्तों को बताती है। अब सारा का दोस्त कैलिब का बेहतरीन दोस्त था और अपनी दोस्त की हालत सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और फौरन अपनी बाइक लेकर निकल गया। लेकिन रास्ते में कैलिब का दोस्त चेस से मिलता है जो अपनी ताकतों से इसकी बाइक तोड़ देता है और इसे तबाह कर देता है। पता चलता है कि चेस सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो शुरू से ही अपनी ताकतों को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ कैलिब का दोस्त इससे कहता है कि मेरे दोस्त को तकलीफ मत देना। इस बार चेस कहता है कि शायद मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दोस्त और सारा बस तुम तीनों तक पहुंचने का एक जरिया थे। अब चेस कैलिब के रूप में सारा के पास जाता है लेकिन जब असली कैलिब वहाँ पर आता है तो वो मक्खियों के जरिए सारा को बेहोश कर देता है। फिर चेस कैलिब से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सारा को मार डालूंगा। इस पर कैलिब इससे पूछता है कि तुम सब क्या चाहते हो। फिर
चेस जवाब देता है कि मेरे पास अब भी तुम चारों से ज्यादा ताकत है, लेकिन मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो कल जब तुम अरूज पर होगे तो मैं तुमसे तुम्हारी तमाम ताकतें ले लूंगा। और हाँ, मुझे इस बच्चे को गाड़ी में मारना पड़ा, चाहे मैं नहीं चाहता था, क्योंकि इसने मुझे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए देख लिया। लेकिन जब कैलिब इससे इनकार करता है तो चेस अपनी तमाम ताकतों से इस पर हमला करता है। वो कैलिब को मारने लगता है। वो कहता है कि तमाम ताकतें मेरे लिए एक नशे की तरह है जिनका मैं आदी हो गया हूँ, लेकिन हाँ, इन ताकतों के कुछ बुरे असरात भी हैं, लेकिन अगर मैं तुम सबकी ताकतें हासिल कर लूं तो इन बुरे असरात में कमी हो जाएगी। कैलिब इसे समझाता है कि देखो, तुम्हें ज्यादा ताकत हासिल करने से ताकत मिलेगी लेकिन उम्र कम हो जाएगी। चेस इसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैलिब को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो कल मुझे अपनी तमाम ताकतें दे देना। ये कहकर वो चला गया। कैलिब अपने अस्पताल में एक दोस्त से मिलने जाता है, क्योंकि उस दिन चेस ने इन्हें बहुत मारा था। जब कैलिब आकर दूसरे दोस्तों को ये सब कुछ बताता है तो वो मशवरा देते हैं कि हमें इससे लड़ना चाहिए, लेकिन कैलिब ने इनकार कर दिया क्योंकि इसे मालूम था कि हम इस तरह से नहीं जीत सकेंगे। और वो वहाँ से चला गया। अस्पताल में इसकी मुलाकात सारा से हुई, जो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो कैलिब से इसके बारे में पूछती है। जब कैलिब सारा को इस पुराने घर ले जाता है जहाँ वो पहले दवाई देने आया था, वो सारा को इस बुरे आदमी को दिखाता है जिसका हम लोगों ने आगे हाथ देखा था। और वो सारा को बताता है कि ये मेरे वालिद हैं। वो सिर्फ 40 साल के हैं, लेकिन इतनी ताकत इस्तेमाल की वजह से वो बूढ़े हो गए। फिर वो सारा को अपने और चेस के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर मैं अपनी तमाम ताकतें बढ़ाने के बाद इसे दे दूं तो मैं मर जाऊंगा। और इस बारे में कैलिब अपनी माँ और दोस्तों को भी बताता है। और वो कहता है कि अब मैं इसके पास अकेला जाऊंगा, मैं इससे पार्टी में मिलूंगा जहाँ वो दूसरों के सामने अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कहकर कैलिब चेस के पास जाने के लिए रवाना होता है, लेकिन रास्ते में चेस आकर कैलिब पर हमला करता है और इसे रोककर एक पुराने घर ले आता है। जब सारा कैलिब को वहाँ पर बेहोश दिखाई देती है। चेस ने इसे अगवा कर लिया था। अब कैलिब यहाँ सारा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी तमाम ताकतों से चेस पर हमला करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तमाम ताकतें कभी नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ चेस कैलिब के ऊपर फोकियत ले रहा था क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था और अपनी तमाम ताकतों की मदद से वो कैलिब को मारने लगता है। अब जैसे ही रात होती है, कैलिब की ताकतें अरूज पर पहुंचने लगती है। इसके अंदर ताकतों का एक बड़ा ग्रुप शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ताकतें कई गुना बढ़ जाती है, जिनकी मदद से चेस पर हमला करता है। लेकिन फिर भी चेस मजीद ताकतवर होता जा रहा था। इसी दौरान कैलिब की माँ इसके वालिद के पास जाती है। कहती है कि हमारा बेटा बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए इसका वालिद अपनी तमाम तर ताकतें जमा करके कैलिब को दे देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ताकतों का तूफान आ जाता है और अब वो चेस से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसकी मदद से वो चेस पर हमला करता है और आखिर में वो बहुत बड़ा हो जाता है और इस तरह का खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद कैलिब सारा को बचा लेता है। इसके अलावा इसकी खातून दोस्त और दोस्त की हालत भी मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाती है। अब चेस के खात्मे की वजह से चेस की लाश पुलिस वालों को नहीं मिलती। इसके बाद सारा और ज्ञानी भी यहाँ से महफूज रवाना हो जाते हैं। इस फिल्म की कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है।